Hello friends, welcome back to my YouTube channel Learn Information Technology. Today in this video I will tell you about shortcut keys. Yes, I will tell you about the shortcut keys using keyboard. Don't worry, I will explain all the shortcut key with the help of practical. So I hope this video is helpful for you. Okay, so let's move further. So in this video I will tell you about these shortcut key. Okay, so let's go through with the points: new, bold, italic, underline, undo, redo, select all, open, cut, copy, paste, print, save, backspace key and delete key. So I will explain you what are the purpose of these keys and how we use the shortcut key. So let's move further. So I am again and again using the word keyboard shortcut key. So let's see what is the keyboard. Keyboard is nothing, it is a panel in which having numbers of keys. So if you are counted on the laptop, there are various types of key: numbers key, alphabets key, punctuation keys, function keys, स्पेशल फंक्शन कीज, विंडोज की, एरोज की. मैंने ऑलरेडी कीबोर्ड के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है, कीबोर्ड मास्टर. तो इफ आपने वो वीडियो नहीं देखी है, गो एंड वॉच द वीडियो. इवन आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द आई बटन. आप आई बटन में यहाँ पर टॉप की तरफ आप देख रहे होंगे, लिंक आ रही होगी. इफ आपको कीबोर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, व्हाट आर द कीबोर्ड कीज, हर की का क्या सिंबल होता है, क्या नेम होता है, आप जाके विजिट कर सकते हो. सो लेट्स मूव फर्दर. So first point is new. Means if you want to make any new document, if you want to make new presentation, if you want to make new Excel sheet, means आपको कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है या कोई भी नई फाइल बनानी है, चाहे वो नोटपैड हो, वर्ड पैड हो, MS वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, एक्सेल हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, इफ उसमें आपको एक न्यू एप्लीकेशन बनानी है, मीन्स न्यू फाइल बनानी है, तो उसका शॉर्टकट की होती है Ctrl+N. ओके. So let's see where is control key in the keyboard. Here is the control key in the keyboard and the N is given over here. With the combination of Ctrl+N key, you have to press together control key and the N. तो आप दोनों साथ में प्रेस करोगे. कंट्रोल की प्रेस करने के बाद जब आप N प्रेस करोगे तो आपकी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की न्यू फाइल बन जाएगी, चाहे आपने नोटपैड ओपन किया हो, चाहे MS वर्ड ओपन किया हो या पावर पॉइंट ओपन किया हो. सो आई होप this key is helpful for you. Okay, so there is a one trick for learning this shortcut key. So making a new file, here the spelling is written from N, so you have to remember the shortcut key using control key with the symbol N. So let's move further towards the practical part of new. So suppose if I want to make a new file of this MS Word, this is the MS Word file. So I will press the shortcut key from the keyboard Ctrl+N. So see here I have make new file in MS Word. और इवन मैं आपको क्लिक करके दिखाती हूँ. देखो MS Word में डॉक्यूमेंट 2 बन के आ रहा है. बाय डिफॉल्ट मेरा डॉक्यूमेंट 1 खुला है. सी here it is document 1 where I am written learn information technology. मैंने using the Ctrl+N key I have created a new document, that is document 2. मीन्स इफ यू वॉन्ट टू ओपन एनी डॉक्यूमेंट फाइल, एनी नोटपैड फाइल, आपको कोई भी फाइल ओपन करनी है जो आपके सिस्टम में ऑलरेडी बनी हुई है, चाहे वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो एक्सेल शीट हो, चाहे वो नोटपैड हो, चाहे वर्ड आर्ट हो, इवन कोई भी एप्लीकेशन आपको खोलनी है जो ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करोगे? Ctrl+O. So the one trick is there. Here it is written open, so you have to use the sign O. Okay. So O sign use करोगे with the help of control key. So let's see where is the control key in the keyboard. Here in the left hand side, in the bottom left hand side, here is the control key. Now let's see where is the O key. So with the combination of control and O key, you will press it together for opening any file. Okay, so let's move further towards this practical part. Suppose I am clicking on the Ctrl+O button. So here I will see all the file application name. जिसको भी मुझे ओपन करना है मैं डायरेक्टली उस पर क्लिक कर सकती हूँ. ठीक है. सो Ctrl+O की प्रेस करने से क्या होगा, आपका ओपन टैब खुलिए. देखिए यहाँ पर ओपन लिख के आ रहा है. इट मीन्स आपको जो भी रिसेंट फाइल ओपन करनी है, चाहे आपके ड्राइव में सेव हो, चाहे आपके डॉक्यूमेंट सेव हो, जो भी आपके सेव हैं ऑलरेडी, वो आपको शो करने लगेगी लिस्ट.
ठीक है, उस लिस्ट में से आप वो पर्टिकुलर फाइल ओपन कर सकते हो जिसको आपकी नीड है. सो लेट्स मूव फर्दर. So let's see the new shortcut key that is for saving a file. Suppose if you want to save a file in MS Word, if you want to save a file in Notepad, if you want to save a file in MS Word presentation or Excel, whatever it is, आपको कोई भी फाइल सेव करनी है, इवन आप एक्सेस भी यूज कर सकते हो या कोई भी प्रोजेक्ट आपको सेव करना है. तो व्हाट इज द शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस एस. सो अगेन द शॉर्टकट की ट्रिक इज you have to save a file, so that you have to use the S symbol. So let's see where is the control key and S key in the keyboard. Here is a control key and S key. So with the combination of these two keys, you have to press it together for saving any file. So let's move further. My document is are written with the help of document 1. इस document file का नाम document 1 लिखा है. So if you want to press, मैं कंट्रोल प्लस एस की प्रेस कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड. सो हेयर इट इज रिटन सेव एज, मीन्स अब मुझे क्या शो कर रहा था? सेव एज. फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी ओपन किया तो यहाँ ओपन फाइल का नेम लिख के आ रहा था. इट मीन्स मुझे यहाँ दिस पीसी में शो करना है, सेव करना है, डेस्कटॉप फोल्डर या डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर सेव करना है, तो मैं क्लिक कर सकती हूँ और उसके अकॉर्डिंग अपना फाइल का नेम लिख सकती हूँ. ठीक है. सो व्हेन आई क्लिकिंग ऑन द सेव बटन, you will save a file. So when you are saving a file for the first time, जब आप फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हो तब आपके सामने ये सेव एज डायलॉग बॉक्स बन के आ रहा है. अदरवाइज आपके सामने सेव एज डायलॉग बॉक्स बार बार बन के नहीं आएगा जब आपने एक बार सेव कर ली है. ठीक है. मैं आपको इसका भी प्रैक्टिकल पार्ट दिखा रही हूँ. सो काइंडली सी व्हाट आई एम सेइंग. आपका सेव एज डायलॉग बॉक्स इसलिए बन के आ रहा है यहाँ क्योंकि आप फर्स्ट टाइम फाइल सेव कर रहे हो. ठीक है. जब आप सेकेंड टाइम सेव करोगे तो सेव एज डायलॉग बॉक्स बन के नहीं आएगा. सेकेंड टाइम में क्या होगा? आपके जो भी आपने चेंजेस करे हैं डॉक्यूमेंट में वो पर्टिकुलर फाइल सेव हो जाएगी बाय डिफॉल्ट. ठीक है. देखो मैं सेव बटन पे क्लिक कर रही हूँ. नाउ सी हेयर इट इज रिटन लर्न इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. मैंने इस फाइल के नाम से सेव किया था, अब मेरा ये नाम लिख के आ रहा है. ठीक है. नाउ आई एम रिटन विद सिद्धि, मैंने ये लिखा. नाउ आई विल सेव दिस फाइल. ठीक है. बाय राइटिंग कंट्रोल प्लस एस. ठीक. देखो मैं कंट्रोल प्लस एस की कीबोर्ड से प्रेस कर रही हूँ. मेरा सेव एज डायलॉग बॉक्स बन के नहीं आ रहा है. क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि एक बार मैंने ऑलरेडी सेव कर ली है. ठीक है. सो आई होप दिस विल हेल्पफुल टू यू. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज? फॉर प्रिंटिंग एनी डॉक्यूमेंट, प्रिंटिंग एनी पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, प्रिंटिंग एनी images, whatever you want to print it, आपको कोई भी प्रिंट करना है, मेक श्योर योर प्रिंटर इज कनेक्टेड विद दी कंप्यूटर और लैपटॉप. कनेक्टेड होना चाहिए तभी प्रिंट आउट निकलेगा, अदरवाइज प्रिंट प्रीव्यू खुलेगा. लेट्स सी द कीबोर्ड शॉर्टकट की फॉर प्रिंटिंग एनी डॉक्यूमेंट. कंट्रोल प्लस पी. ठीक है. सो लेट्स सी द वेयर इज द की इन द कीबोर्ड. हियर इज द कंट्रोल की एंड पी की इज प्रेजेंट ओवर हियर. ओके. सो विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू की यू हैव टू प्रेस इट टुगेदर for printing any document, any images, any PowerPoint presentation. Okay. So let's see towards our practical part. I am pressing the shortcut key for Control plus P. So here my printer is not connected. So first of all it will show the print preview. देखो यहाँ print preview खुल के आ रहा है. I have written the page Learn Information Technology with Siddhi. Here it is one page only. Now I will select the number of copies, what is the page, A4 sheet or norm, what is the margin in that. So I have to click on this print button for printing any document. So let's move further. So here it is again a shortcut trick for bolding your text. Bold क्या होता है? आपका कोई भी टेक्स्ट यदि लिख के आपने लिखा है नॉर्मल में, वो पर्टिकुलर टेक्स्ट की विड्थ इंक्रीज कर देगा. वो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल से बताऊंगी, आपको डिफरेंस समझ में आएगा. हेयर इट इज दिस फॉर डूइंग द टेक्स्ट बोल्ड. हेयर द स्पेलिंग इज बोल्ड, बी इज देयर. सो द शॉर्टकट की इज कंट्रोल प्लस बी. ओके. सो लेट्स सी वेयर इज द कंट्रोल की एंड द बी की इन द कीबोर्ड. Here is the control key and this one is the B key. So with the combination of these two, you have to press it together for make the text bold. Okay. So I hope this trick is helpful to you. So let's move further towards our practical part. I will select all these texts. Now I will press the shortcut key control plus B. So see the content what I have written. मेरा content ध्यान से देखना, जो normal लिखा हुआ है इसमें अब देखना है इसका content कैसे change होता है.
सी इसकी विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज होगी। मैं आपको दोबारा करके दिखाती हूँ, ध्यान देना। दिस वन इज द नॉर्मल टेक्स्ट। व्हेन आई एम क्लिकिंग ऑन द बोल्ड की, हियर द लेटर विड्थ इज इंक्रीजेस। आपको थोड़ा थोड़ा डार्क दिख रहा होगा, लेटर एल ई ए आर एन, इसकी विड्थ थोड़ी सी डार्क कलर से, लाइक आपने ये पर्टिकुलर टेक्स्ट ब्लैक मार्कर से लिखा हो, थिक मार्कर से। So I hope this trick is helpful to you. Italic, the shortcut key is same, Control plus I. I why I am using, because I हम italic को letter start होता है I से. So the shortcut trick is Control plus I. So let's see where is the control key. Here is the control key and here is the I. So with the combination of these two key, you have to press it together for making the text italic. Italic का मतलब क्या होता है? Italic का मतलब होता है कि आपने कोई भी text को यदि italic किया है तो वो slightly bent होगा right hand side पे। मैं आपको प्रैक्टिकल से दिखाती हूँ। See, I have selected this text, learn information technology with Siddhi. I will press the shortcut key Control plus I. Okay? So see, it will slightly bends toward right. मीन्स राइट साइड की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है। अंडरलाइन का मतलब आप लोग अच्छे से जानते हो, मीन्स किसी भी वर्ड के नीचे एक अंडरलाइन आना, मीन्स एक लाइन आना बिलो द टेक्स्ट। ओके, सो व्हाट इज द शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस यू। इसकी ट्रिक क्या है याद करने की? बिकॉज अंडरलाइन यू से स्टार्ट होता है, इट मीन्स इट शॉर्टकट की इज कंट्रोल प्लस यू। हेयर इज द कंट्रोल की and here is the U button. So with the combination of these two key, so तभी आपका particular text underline होगा. So I hope you have understood what is underline. Let's see the practical part. So I have selected this text. This text are in italic already. मैंने italic किया था. If मुझे इसी text को bold करना है, see I will press the control key plus B key. तो मेरा text की widthness increase हो गई. It means it is highlighted. Now I will press the Control plus U key. So see a line below the text. Line एक बन के आ रही है, so that it is underlined. Next key is undo key. Okay, undo का मतलब होता है जो भी आपने current changes किए हैं, मीन्स इससे पहले जो चेंजेस किए हैं वो आपके प्रीवियस स्टेप पे जाएगा, मीन्स एक स्टेप बैकवर्ड जाएगा। ठीक है, undo का शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जेड। जेड इसीलिए यूज़ करते हैं बिकॉज ये प्रीवियस स्टेप पे जा रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी द शॉर्टकट की। कंट्रोल की इज हेयर एंड द जेड की इज हेयर। सो विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू की यू कैन डू एनी अनडू टास्क। सो लेट्स सी towards our practical. Suppose I have removed this with Siddhi. These two words I have removed. So I want these text what I have written, I want again it will show it. मैं चाहती हूँ जो मैंने अभी भी चेंजेस किए हैं वो मेरे वापस से रीडू हो जाए, मेरे से जो बाय मिस्टेक डिलीट हो गए हैं मैं चाहती हूँ वो फिर से आ जाए। ठीक, सो now I am pressing Control plus Z key from the keyboard. See, I have pressed and I will see with Siddhi again word. मीन्स ये जो वर्ड मैंने रिमूव किए थे वो फिर से लिख के आ गया, मुझे दोबारा लिखना नहीं पड़ा। तो दिस विल हेल्प मी फॉर अनडू टास्क, मीन्स मुझे वो प्रीवियस स्टेप पे जाना। रीडू का शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वाई। रीडू का मतलब होता है आपने जो भी चेंजेस किए हैं अनडू की वजह से, आपने जो भी चेंजेस किए थे अनडू से वो आप चाहते हो रीडू हो जाए। ठीक है, मीन्स रीडू क्या करता है, प्रीवियस जो काम अनडू ने किया है उसको फिर से रीडू करता है। ठीक है, सो कीबोर्ड शॉर्टकट की देखते हैं फिर प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। हेयर इज द कंट्रोल की एंड हेयर इज द वाई की। सो दिस वन इज द शॉर्टकट। विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू की यू हैव टू डू एनी रीडू टास्क। सो लेट्स मूव फर्दर टुवर्ड्स प्रैक्टिकल। नाउ अभी मैंने क्या किया था, सो विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल प्लस जेड आई हैव डू अनडू। मैंने अनडू किया था बिकॉज मैंने जो भी बाय मिस्टेक डिलीट कर दिया था मैं चाहती हूँ वो दोबारा आ जाए। नाउ आई विल शोइंग यू कंट्रोल प्लस वाई। सो देखो मैंने जो लिख के आया था टेक्स्ट विद सिद्धि उसको मैंने रिमूव किया। अब मैंने क्या किया, कंट्रोल प्लस वाई किया, मीन्स मैं चाहती हूँ वो रीडू हो जाए। रीडू का मतलब होता है जो भी टास्क अनडू ने किया है उसको वो रिमूव कर दे। ठीक,
इसलिए वो जो पर्टिकुलर टेक्स्ट लिख के आया था विद सिद्धि उसको रिमूव कर दिया है उसने, क्योंकि ये काम किसने किया था, अंडू ने. सो नाउ आई विल डू अंडू और रीडू. मैं दोबारा करके दिखा रही हूँ. अंडू क्या होता है, रीडू क्या होता है. सो अंडू इज बेसिकली गो टू द प्रीवियस स्टेप. पहले वाले स्टेप पे जाएगा. सपोज मैंने इस पर्टिकुलर टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग चेंज करी है. आई विल चेंज द कलर टू द रेड. मैं इसका रेड कलर चेंज कर रही हूँ. ध्यान देना क्या होगा. अब मैंने इसका कलर चेंज कर दिया. अब मैं क्या कर रही हूँ, अंडू कर रही हूँ. अंडू मीन्स इससे पहले वाले स्टेप पे जाऊंगी. तो लर्न इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद सिद्धि किस कलर से लिखा था, ब्लैक कलर से. सो नाउ आई एम प्रेसिंग द की फ्रॉम द कीबोर्ड कंट्रोल प्लस जेड. तो देखना क्या होगा. सो सी मेरा कलर क्या लिख के आ रहा है, ब्लैक कलर में हो गया पूरा. क्यों, क्योंकि वो प्रीवियस स्टेप पे जा रहा है. ठीक है. इफ मैं रीडू करती हूँ तो रीडू से देखना क्या होगा, वो पर्टिकुलर रेड कलर फिर से आ जाएगा. क्यों आ रहा है, क्योंकि रीडू क्या करता है, अंडू वाले टास्क को, जो भी अंडू ने वर्क किया है उसको रिमूव करता है. ठीक है. तो आई एम प्रेसिंग कंट्रोल प्लस वाई. सी इट इज अपीयर इन द रेड कलर. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अंडू एंड रीडू. Undo goes to the previous step. Redo remove the undo step. Means undo ने जो भी किया होगा उसको remove कर देगा. ठीक है. So let's move further. So if you want to select all the content whatever you have written in MS Word, in MS PowerPoint, whatever you have written in Excel sheet, आपने जो भी लिखा है, it doesn't matter आपने 5 pages लिखे हैं, 20 pages लिखे हैं या 300 pages लिखे हैं. इट डजेंट मैटर. सो इफ आपको सारा टेक्स्ट एक साथ सेलेक्ट करना है, मीन्स सेलेक्ट ऑल करना है, तो व्हाट इज द शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस ए. देयर इज अ ट्रिक फॉर लर्निंग दैट. कंट्रोल प्लस ए यूज फॉर ऑल द टेक्स्ट. ओके. एस यहाँ इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि कंट्रोल प्लस एस सेव के लिए होता है. ठीक है. सो ए यूज होता है ऑल टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए. So let's see where is the control key. I hope you have remembered this. Control key हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होती है, बॉटम के साइड में. Here is the A key. A key यहाँ प्रेजेंट होती है. With the help of these two key you have to press it together so that you have to select all text. Okay. So now I am showing the practical for writing any paragraph. See how many text I have written. कितना सारा टेक्स्ट लिखा है, मुझे एक एक करके सेलेक्ट करना पड़ेगा. इट्स टेकिंग टू मच टाइम फॉर सेलेक्टिंग एनी टेक्स्ट. सो आई एम प्रेसिंग द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ए. इट विल अपीयर सेलेक्ट ऑल माई टेक्स्ट. आप नीचे स्विच करके देखिए, मेरा पूरा टेक्स्ट जितने भी नंबर ऑफ पेजेस हैं सब सेलेक्ट हो गए हैं. ओके. सो सेलेक्ट ऑल का मतलब होता है अब इसमें मुझे कुछ फॉर्मेटिंग लगानी है, लाइक मुझे बोल्ड रिमूव करना है तो मैं रिमूव कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल बी साइन. अंडरलाइन लगानी है तो मैं अंडरलाइन प्रेस कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल यू. ठीक है. सो आई होप यू व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेलेक्टिंग ऑल द डॉक्यूमेंट, ऑल द कंटेंट इन द डॉक्यूमेंट. सो लेट्स मूव फर्दर. सो लेट्स सी. फर्स्ट वन इज कट. कट बेसिकली यूज फॉर कंट्रोल प्लस एक्स की. ठीक है. मैं पहले की दिखाती हूँ फिर शॉर्टकट ट्रिक बताती हूँ. हेयर इज द कंट्रोल की and here is the X key. So with the combination of these two key you can cut any text, any picture, any folder, any document file, anything if you want to cut it. Now the shortcut trick is, here is the symbol of scissor. Cross sign है और you can say the symbol of scissor. It look like a cutting anything. क्रॉस में है, आप इसको सीजर भी बोल सकते हो. और सीजर किस लिए यूज होती है, कट करने के लिए. सो कंट्रोल प्लस एक्स इज यूज फॉर कटिंग एनी टेक्स्ट और एनी डॉक्यूमेंट, एनी पिक्चर्स, एंड यू कैन पेस्ट इट वेयर यू वांट टू कट इट. सो कट कॉपी पेस्ट का मैं आपको तीनों साथ में इसका प्रैक्टिकल बताऊंगी. सो लेट्स मूव फर्दर टुवर्ड्स दी कॉपी. सो हेयर वी यूज कॉपी एज कंट्रोल प्लस सी की. सो हेयर इज द कंट्रोल की and the C key is present over here. So with the combination of these two key you can copy any text, any folder, any pictures, whatever you want to it. Okay. So here is the shortcut trick.
C is used for copy the text because first letter is C. So here control plus C. ठीक है. So let's move further towards paste. With the combination of these three, cut, copy and paste, we will explain practical together. Now paste is used for basically control plus V. पेस्ट क्यों यूज़ होता है? आपने कोई भी कट किया है या कॉपी किया है, उसको यदि आपको कहीं जाके स्टिक करना है तो वी विल यूज़ वी साइन. Let's see the where is the control key, here is the control key and here is the V key. So with the combination of these two key you can paste the text anywhere in the file or anywhere in the drive. So let's move further towards their practical part. Suppose I want to paste learn information technology at the end of the document. I will select this text and I will press the control plus C key. I am explaining copy text. Okay, मैं control C press कर रही हूँ from the keyboard. Now I will place the cursor in anywhere in the document where I want to paste it. मैं अपना cursor वहाँ लेके जा रही हूँ जहाँ मेरे को इस particular text को place करना है. Suppose इसी के बाद करना है तो आप कंट्रोल V प्रेस कर सकते हो फॉर पेस्टिंग मीन्स स्टिकिंग इट, अदरवाइज एंटर की प्रेस करके कर सकते हो. ओके, आई एम प्रेसिंग कंट्रोल प्लस V की. सी, मैंने लर्न इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेलेक्ट किया था, वो पर्टिकुलर टेक्स्ट मेरा यहाँ आके पेस्ट हो गया. ठीक है. नाउ सी इन द टॉप ऑफ द पेज, वहाँ से वो पर्टिकुलर टेक्स्ट रिमूव नहीं हुआ है बिकॉज आई हैव सेलेक्ट द टेक्स्ट कॉपी. मैंने कॉपी सेलेक्ट की थी इसकी, वहाँ जाके पेस्ट किया है. ठीक है. If I will select this text and I will press Ctrl plus X key, means I am using cut shortcut key. तो देखो यहाँ से वो particular text remove हो गया है. Okay, if I want to paste it like before the for example, मुझे यहाँ पर लिखना है, I will press the enter key, I will use the paste button. So here it will edit before the for example. फॉर एग्ज़ाम्पल से लर्न इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वहाँ यहाँ आके पेस्ट कर दिया मैंने, तो देखो टॉप से जाके वो पर्टिकुलर टेक्स्ट रिमूव हो गया है. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. सो लेट्स मूव फर्दर टुवर्ड्स लास्ट शॉर्टकट की, दैट इज बैक स्पेस की एंड डिलीट की. दीज की आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक many of you have didn't know what is the purpose of using backspace key and what is the purpose of delete. So let's see where is the key backspace key and delete key in the keyboard. Here is the backspace key and this one is the delete key. Okay, here is the delete key, this one is the backspace key. So let's move further. What is the difference between these two key? Difference between backspace key and delete key. So let's see the backspace key first, then we will see delete key. So here I have already explained you where here is the backspace key and the delete key in the keyboard. I have already explained you where is the backspace key and where is the delete key in the keyboard. Okay. So let's move further towards their first difference. So here backspace key, it basically remove the character from the left hand side of the cursor. What does it means? If I am saying my cursor is this, where I am शोइंग द कर्सर, मैं आपको यहाँ कर्सर जो शो कर रही हूँ, मेरा कर्सर यहाँ है. इफ़ आई एम यूजिंग बैक स्पेस की, मैं बैक स्पेस की कीबोर्ड से प्रेस कर रही हूँ, तो क्या होगा, ये जो मेरा कर्सर है इसके लेफ्ट हैंड साइड का एक एक करके डेटा डिलीट होगा अनटिल एंड अनलेस मैंने पूरा वर्ड सेलेक्ट नहीं किया है. ठीक है. सो बैक स्पेस की क्या करता है, सिंगल कैरेक्टर रिमूव करता है लेफ्ट हैंड साइड से. मीन्स यहाँ मेरा कर्सर है, इसके लेफ्ट हैंड साइड से एक एक करके सारा करेक्टर डिलीट करेगा. ठीक. नाउ once when I select the whole word, when I am clicking on the backspace key, then it will delete all the word. मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, डोंट वरी. लेट्स सी दी व्हाट इज द डिलीट की. डिलीट की इज बेसिकली just opposite to the backspace key. It delete the character from the right hand side. backspace क्या करता था, कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड से डेटा डिलीट करता था एक एक करके. डिलीट की क्या करेगा, कर्सर के राइट हैंड साइड का डेटा डिलीट करेगा एक एक करके. मीन्स सिंगल करेक्टर डिलीट करेगा वन बाय वन. ओके. अगेन सेकेंड पॉइंट इज सेम इन बोथ दी कीज. आपने यदि पूरा वर्ड सेलेक्ट किया है तो आप चाहे डिलीट की प्रेस करो चाहे बैक स्पेस की करो, आपका वो पर्टिकुलर वर्ड डिलीट हो जाएगा. ठीक है.
So let's see the second point. It erases word when deleted when word is selected. Okay, जब पूरा वर्ड आपको डिलीट करना है तो आप कोई भी की प्रेस करो, इट डजेंट मैटर, आपका वर्ड सेलेक्ट है, इट मीन्स वो पर्टिकुलर वर्ड डिलीट हो जाएगा. सो लेट्स सी द प्रैक्टिकल पार्ट. नाउ kindly see what I am showing you now. So here if I am clicking on the before I, मैं I से पहले क्लिक कर रही हूँ, देखो मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है. इट मीन्स इफ आई एम यूजिंग द बैक स्पेस की, बैक स्पेस की में क्या कर रहा था, लेफ्ट हैंड साइड का डेटा डिलीट कर रहा था. ये कर्सर है, कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड का डेटा मीन्स PROV इट्स द लेफ्ट हैंड साइड डेटा, IDES इट्स द राइट हैंड डेटा. ओके, सो इफ आई एम प्रेसिंग सिंगल बैक स्पेस की तो मेरा क्या होगा, पॉज दी वीडियो, काइंडली थिंक इट व्हाट इट विल डिलीट, V डिलीट होगा या I डिलीट होगा. सो हेयर माई कर्सर इज ब्लिंकिंग. इफ आई एम मूविंग द कर्सर, मेरा कर्सर सिर्फ यही है, नाउ आई एम प्रेसिंग द बैक स्पेस की, तो सी V इज रिमूव्ड, V रिमूव हुआ क्योंकि मैंने बैक स्पेस की प्रेस की. इफ आई एम अगेन प्रेसिंग द बैक स्पेस की, O will be deleted. If I am again pressing it, R will be deleted. Means left hand side का एक एक कैरेक्टर रिमूव हो रहा है. If I am pressing delete की now, देखो कर्सर मेरा वही है I से पहले. If I am pressing delete की now, तो it will delete right hand side data single character at a time. I delete हुआ, then it will delete D, then it will delete E because I am again pressing a delete button. Okay, now practical part of second point. देखो मैंने प्रूफ वर्ड सेलेक्ट किया है, नाउ आई एम प्रेसिंग डिलीट की, तो देखना मेरा पूरा वर्ड डिलीट होता है. मैं डिलीट की प्रेस कर रही हूँ, सी प्रूफ वर्ड पूरा डिलीट हो गया. इफ आई एम क्लिकिंग अगेन एंड आई विल सेलेक्ट ऑनलाइन, नाउ आई एम प्रेसिंग बैक स्पेस की, नाउ सी एक एक करके वर्ड रिमूव नहीं होगा, पूरा वर्ड रिमूव होगा ऑनलाइन. ठीक है, सी ऑनलाइन विल रिमूव. Okay, so delete key delete the data from the right hand side, backspace delete the character from the left hand side of the cursor. Cursor is the main point for using backspace key and delete key. Okay, so that's all in today's video. If you have understood all the shortcut trick or tips for learning the shortcut keys, then hit the like icon, subscribe it if you are new to my channel, and hit the bell icon for get it notified. Okay, see you guys, see you in the next video. Bye bye.